My dad was crazy strict. You won't believe 7 o'clock के बाद कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना. My sister was not allowed to stand in the balcony. So the tailor misbehaved with me. Did he touch you? Yeah. And he was plus 60s. There was this guy who stayed across my building. I had the craziest crush and it never went anywhere because clearly I wasn't his and he never came to me. Do not be with somebody who's trying to change who you are. So आप अपने आप को प्यार के लिए बिल्कुल ना बदलें. ये देखिए अनीता को ले आए हम लोग मेल फेमिनिस्ट में. क्या हाल है आपके? बढ़िया, आप कैसे हो? वेलकम टू द शो एंड वेलकम टू दिस सेटअप. बचपन बताओ यार, क्या हाल था, कैसा रहता था एटलीस्ट टिल 10 to 15 years of age? घर का क्या माहौल था? कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था घर के कामों में? Well, I come from a middle class background and as usual जैसे हर घर में होता है, mom is a housewife, dad would work. I lost him when I was in my teens and उसके बाद में सब कुछ overnight kind of बदल गया. सब सोचते थे कि oh my god, 2 daughters, how will they manage, how will they handle? My mom also got into tailoring, so काफी कुछ अचानक से बदल गया. Are you all very close? Yeah, we were close. Not very close, but close enough. कुछ बातें जो याद हो? Like मैं जो मांगती थी मुझे ऐसे like like I said middle class family and I was in like one of the better schools. जैसे कि parents हमेशा चाहते हैं to put you in the best school. तो मेरी जो demands थी वैसी थी कि मुझे ये ही चीज़ चाहिए, मुझे वो ही. Would just make it a point के भले खुद के लिए कम करेंगे घर के लिए, लेकिन मुझे जो चाहिए वो मुझे हमेशा मिलता था. And he was very protective and very loving and yeah, he was amazing and he was very honest. उन्होंने मुझे लाइफ में एक चीज सिखाई कि आप अगर गलत भी कर रहे हो ना, उससे एक्सेप्ट करो. If you're honest in life, you will go very far. That's so true. Yeah. He's watching over us, I'm sure. Yeah. But आप लोगों के in time out time होते थे कि भाई इतने बजे से पहले घर आ जाना है? My dad was crazy strict. You won't believe 7 o'clock के बाद कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना. My sister was not allowed to stand in the balcony. What are you saying? Yes. Can you believe it? I come from that background to becoming an actor who's like out there and sitting here and giving this crazy interview. So for my sister, balcony में नहीं खड़े रहना, यहाँ ज़्यादा tight leg, जैसे I think हमेशा लड़कियों को ही बोला जाता है कि ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो. Leggings exactly की बात कर रही हैं? Yeah. So my sister, I still remember, मैं तब छोटी थी and my dad said कि no, you're not wearing tight clothes. क्या घर वाले जनरली खुश थे सब लोग की 2 लड़कियां हुई हैं? क्योंकि हमारे ही शो पे कई गेस्ट आई हैं और वो बोल के गई हैं कि नहीं, कई और लोगों को प्रॉब्लम होती थी कि लड़कियां हो गई आपके घर में. तो मेरी मम्मा ने कभी ऐसा बताया नहीं. शी इज तो सुपर प्राउड ऑफ मी एंड माई सिस्टर. लेकिन आई एम श्योर उस जमाने में तो डेफिनेटली उनको ताने पड़े होंगे एंड क्योंकि उस जमाने में बिलीव करते थे कि अरे लड़का होना चाहिए. लेकिन आई थिंक लकली इट्स ऑल चेंज्ड. इनफैक्ट मेरे आंखों में ऑलमोस्ट आंसू आ गए थे जब आरव मतलब रो तो रही थी लेकिन मुझे लड़की चाहिए थी. सो अरे यार लड़का हो गया. From the future when you're watching this, my husband keeps saying this to me. I'm going to tell him one day. Hello Mr. Reddy. But I love him. आप दुनिया को फिर कैसे देख रही थी अलग when you started working? Because जब आप कमाने लग जाते हो तो हमें कई महिलाओं ने ये बोला है कि एक अलग पावर आती है जी. तो वो बदलाव कैसा हो रहा था? Everybody looks at you as so strong, so powerful. Oh my God, she's doing so much for the family. The breadwinner. She's earning for the family. So suddenly the outlook for people think of you differently. They look at you differently, and it's a great फीलिंग. ऑल्सो मेरी मॉम का इतना सपोर्ट था. लाइक नॉर्मली लड़की से एक्सपेक्ट किया जाता है कि किचन में कुक करे या घर गृहस्थी संभाले. आई रियलाइज कि मुझे वो सब, इनफैक्ट शादी के बाद भी मुझे एहसास हुआ कि यार घर को कैसे संभालना. दैट वाज लाइक अ बिगर चैलेंज फॉर मी. क्योंकि आप 15 साल से आप गोइंग टू वर्क. अरे किचन में कौन सा सामान, लाइक रोहित आज भी मुझे पूछता. I'm like okay, let me think, because I'm not used to doing those things. यार लेकिन आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपके परिवार वाले जनरली काम करने वाली महिलाओं के प्रति ज्यादा एंकरेजिंग नहीं थे. बट वो कैसे आप बैटल कर रही थी और उनको कैसे परे होके आगे बढ़ रही थी? लाइक इनिशियली सब टुवर्ड्स द एंटायर थॉट काफी नेगेटिव थी कि अरे कुछ होगा नहीं, ट्राई कर रही है, शील कम बैक, शील वील हैव टू हेल्प हर. लाइक सबका अप्रोच बहुत ये था कि कुछ होगा नहीं. आपको भी बोले थे सर? हाँ, लाइक मुझे तो फेस पे बोला था कि यार शक्ल देखो. एट दैट पॉइंट आई वाज लिटिल प्लम्प एंड ऑल के नो, यू वोंट रियली, बट यू कैन ट्राई योर लक आउट.
एंड देन जब धीरे धीरे आई स्टार्टेड डूइंग वेल देन दे ऑल्सो अंडरस्टूड कि इट इज पॉसिबल. अब जब मैं देखती हूँ व्हाट दे कॉल बॉम्बे द सिटी ऑफ dreams, it actually is. I mean, 100%. I lived in Bombay and I actually lived my dreams and fulfilled them. So I think anything and everything is possible if you give your 100%. यार पता नहीं कहाँ से आया कि साउथ इंडस्ट्री में बस्टी वुमेन की रिक्वायरमेंट और बड़े बस्टी औरतों को कास्ट करने की रिक्वायरमेंट बड़ी आती रहती थी और वहां पर कास्टिंग का ज्यादा प्रचलित है, ये बात हमेशा उठती रही है. आई हैव नॉट फेस्ड मच देयर, लेकिन बस्टी विमेन में भी, क्योंकि मैं एक आइटम सॉन्ग बहुत बड़ी फिल्म में नाम नहीं लेना चाहूँगी, फाइनल हो गई थी एंड आई वेंट ऑन द सेट एंड दे डिडंट टेल मी यू आर नॉट बस्टी इनफ, but they told me कि it's not working out and they sent me back. And later the manager told me कि they wanted somebody heavier from here, from bums, from everywhere, but it's okay. If they like voluptuous women, nothing wrong in that. नुवु नैनू में थोड़ी मोटी थी और जब ये गाने का वक्त आया ना तो पतली हो गई थी. So they expected me to be looking little हट्टी कट्टी. यार एकता की बात करते हैं, उनके साथ दोस्ती कैसे आपकी चालू हुई, आपको फर्स्ट इंस्टेंसेस याद हैं क्या? जनरली कितना एक स्ट्रॉन्ग वुमन के साथ होना कितना आपको खुद को एम्पावर्ड और स्ट्रॉन्ग महसूस करवाता है? शी इज अ क्रिएटिव जीनियस. शी जस्ट नोज व्हाट शी इज डूइंग, बी इट कास्टिंग, बी इट स्टोरी. लाइक आप कोई भी सिचुएशन जो आपको लगे कि अरे ऐसा हो भी सकता है, कन्विक्शन है नहीं होगा, ऐसे कैसे आएगा, पर वो आपको बिलीव कराएगी और वो कन्विक्शन आ जाएगा. और जब आप वो ट्रांसलेट होके स्क्रीन पे देखोगे भी ना, यू विल बी लाइक ओ माय गॉड शी वाज मेकिंग सेंस. आपको डाउट हुआ था क्या कोई रोल पे? मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने बोला नहीं अनीता कर लो. रोल नहीं, एक सीन था, काव्यांजलि में एक सीन था एंड बेसिकली वी आर एट अ क्लिफ एंड द हीरो इज falling off the cliff but he holds the Mangal Sutra and he doesn't fall. Basically power of the Mangal Sutra. So when you read it on paper you're like, is this even going to look fine? But the minute she narrated it, she guided them how the shots are going to be taken and then finally म्यूजिक के साथ जब आप स्क्रीन पे देखते हो लाइक ओके फाइन. बट जब नागिन भी हो रहा था तब क्या आपने उनको कॉल किया था और बोला था कि यार मेरे को काम चाहिए टाइप्स? वेल उसके साथ मेरा कंफर्ट है कि जब भी मुझे काम चाहिए तो मैं बोलती हूँ एंड आई थिंक बोला भी होगा एंड उन्होंने मुझे दिया भी. सो या इन फ्रेंडशिप इट्स ओके. आई मीन पीपल से नेपो किड्स. आई मीन इफ you know your family and your friends won't help you out in life then who will? I mean if my father was a producer obviously I'll tell him पहले मुझे लेकर फिल्म बनाओ ना, मैं थोड़ी बोलूंगी कि आप एक न्यूकमर को लो. So I think there's nothing wrong in it if they're supporting their own family. 100%. कोई टिप्स देना चाहोगी लड़कियों को जो आना चाह रही हैं इंडस्ट्री में या कहीं पे भी काम करने की कोशिश कर रही हैं? You enter a place and the first thing the person does is close the door. You know I'm saying little signs, hints you'll get. And you can get out of the situation. I feel कि ये Me Too ने तो काफी कुछ बदल दिया. I think people are very scared and very hesitant. Even a hug and the graze is also very. हाँ, but वो हाथ भी जो graze करते हैं जब hug कर रहे हो तो वो सब clear indicators है. Absolutely, वो तो every woman knows. अनीता हाँ कि आप हमें ये बताओ कि जो बच्चियां भी देख रही है उनको भी समझ में आ जाए कि till where is the hand okay or what is okay. I mean you won't believe it now, the education system has upped their game so much that you know like my 4-year-old knows the difference between good touch, bad touch. उन्हें good touch, bad touch सिखा दिया गया है. मतलब वो बताते हैं कि these are your private parts and nobody can touch you there, you know how is somebody is kissing you, you know forehead, no stranger. So I think the awareness today is so good that I think yeah it really is. क्योंकि जहाँ से मैं आती हूँ जहाँ पर हमें बिल्कुल बताया नहीं गया था, मतलब 16-17 की जब मैं थी तभी जाके मुझे realize you know if somebody is like hugging you with you know little like tightly, किसी ने होल्ड किया तो आपको समझ आता है गलत है. लेकिन जब हम बहुत छोटे थे हमें नहीं था एहसास, लेकिन आजकल स्कूल में सिखाया जाता है ना. आई एम वेरी प्राउड. आई हैव अ सन ऑफ कोर्स, बट अगर लड़की भी होती आई वुड प्राउडली से कि नाउ आई फील दैट दे आर सेफ, क्योंकि एजुकेशनल सिस्टम हैज़ रियली अप देयर गेम टू अनदर लेवल. एंड आई थिंक हमारे टाइम की लड़कियां ना भले वो बोलती नहीं है, बट आई थिंक एवरी वुमन लाइक आउट ऑफ 10 9 मस्ट हैव गॉन थ्रू इट. मैं आज तक एक भी शो में महिला नहीं आई है. हम 100 एपिसोड हो जाएंगे थोड़े दिन में जो मुझे आए और बोले कि नहीं हमारे साथ कुछ नहीं. एंड यू नो हमें वो कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि हम हमारे पेरेंट्स को बताएं. उन्होंने ये भी हमें नहीं सिखाया था कि यू नो लाइक कि इफ समथिंग लाइक दिस हैपेंस टेल अस, कम्युनिकेट करो. लाइक इफ आई विल शेयर वन इंसिडेंट एंड इफ माय मॉम सीज इट शी विल बी डेवास्टेटेड इन शॉक.
So I don't think I should share it also. Was it terrible? Like, It wasn't. It was borderline. She had left me with a garment tailor. कि Okay. मैं 10 मिनट में आती हूँ. Because she had to run errands and like I said, my dad. 100%. So the tailor misbehaved with me. Did he touch you? Yeah. But I was so young, I didn't know. I just pushed away and I think in 15-20 minutes or whatever my mom came and I didn't even know that I should be informing her. वो मुझे ना एहसास था ना knowledge था और ना मुझे ऐसे लगा कि मम्मी को बता के और स्ट्रेस में डालूं क्या. She has to work. The बट tailor टेलर has to come. जनरली बस साइज लेते हैं तब बहुत अवेयर होते हैं और लेडीज टेलर हमेशा से मुझे आज तक कभी नहीं सुना है, मैंने कभी नहीं जाना No, है. मेरी मेजरमेंट्स नहीं ले रहा था वो. मैं घर पे थी, एक बच्ची घर पे थी. She had gone down to run errands. She used to do little tailoring. So the tailor would be doing the work. So अच्छा, ये while आपके doing, ही वो थे. मेरे ही टेलर एंड ही वाज प्लस 60s. रास्ता चलते आपके साथ कभी कोई किसी ने इनअप्रोप्रिएशन की हो तो बताइए उसके बारे में. जब हम स्कूल से ना सो बेसिकली मॉम यूज्ड टू गिव अस 10 रुपीस के रिक्शा में जाओ एंड वापस आते समय वी यूज्ड टू कम बैक वॉकिंग. वी यूज्ड टू सेव दैट मनी टू हैव समोसा और समथिंग इन द कैंटीन. तो हम वॉकिंग आते थे ना, देयर यूज्ड टू बी दिस रिक्शा गाय एंड वो ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक बार या हफ्ते में एवरी डे यूज्ड टू जस्ट स्टैंड इन दैट पोजीशन एंड जस्ट कोई भी लड़की को देख के ही वुड जस्ट रिमूव हिज pants and start touching himself there and giving us How looks old and were we you used to 9-10 और ये कौन से एरिया की बात है? खार ऐसा हो गया था. देन वी चेंज द रूट बिकॉज फिर ऐसे जब हम वॉक भी करते थे हमेशा वो एक डर रहता था ही इज नॉट देयर, नो ही इज नॉट फॉलोड अस ना, क्योंकि गर्ल्स स्कूल था एंड वो ऐसे लगता रास्ता था. पता था उनको. हाँ, सो ऐसे लगता था दैट एंड ऑल्सो ही हैड अ रिक्शा ना, तो हम हमेशा कहीं पर भी रिक्शा होता था स्कूल के आसपास वी वुड तो रिक्शा से डर लग जाए यार किसी को. बट वही है ना कि हमारी महिलाएं जब रास्ते पे निकलती हैं तो एक ढाल लेके क्यों निकलती हैं? ऐसा आपने नोटिस किया होगा ना, द बॉडी लैंग्वेज चेंजेस फ्रॉम व्हेन यू आर इन होम टू व्हेन यू आर ऑन द रोड बैक इन योर प्लेस ऑफ वर्क और स्कूल या कॉलेज. ये आपने नोटिस किया है कभी होते हुए? एब्सोल्युटली. वी हैव टू बी सो अलर्ट. हमेशा एक वो होना चाहिए कि कहीं कोई पीछे तो नहीं है. लाइक यू आर ऑलवेज अ लिटिल स्कैर्ड. बॉम्बे जैसे शहर में कभी कभी ऐसा लगता है, तो अदर सिटीज एंड टाउन्स में तो डेफिनेटली लगता होगा. यू आर ऑन हाई अलर्ट बेसिकली व्हेन यू आर वॉकिंग अलोन ऑन रोड. हालांकि बॉम्बे आई फील इज नाउ तो बिल्कुल नहीं. Revolutionary. या लाइक रात को 2-2:30 बजे भी जाओ तो वो कि लाइक मम्मी से बात करते करते यू आर गोइंग समवेयर, क्योंकि शूटिंग से कभी कभी. सो दैट वे इट्स ऑल्सो सेफ. बट ऑलवेज वो एक आध इंसिडेंट होते ही हैं जहाँ पर यू फील के ऐसा क्यों होता है लड़कियों के साथ. जनरली रिलेशनशिप्स का कैसा सीन रहा? व्हेन डिड यू स्टार्ट डेटिंग? वर यू द काइंड्स हु वुड आस्क समबडी आउट? No, I wasn't. I would wait. Even if I had there was this guy who stayed across my building. I had the craziest crush and it never went anywhere because clearly I wasn't his and he never came to me. Ouch. But yeah, for me, old thinking, पुराने ज़माने की के पहले लड़का पूछेगा and then I'll go out on a date or whatever. एजाज के साथ रिलेशनशिप का आपका काफी प्रचार हुआ, वो कितना आपको इफेक्ट कर रहा था? क्योंकि आई एम श्योर यू आर डीलिंग विद अ ब्रेकअप योरसेल्फ आल्सो, नहीं? Yeah, so that was one of the first few longish relationships, and I'd also gone against my mom because he was another culture, Muslim, and I was a Hindu. मतलब वो मना नहीं कर रही थी, लेकिन उनके मन में एक था कि it's और too लॉन्ग much टर्म of रिलेशनशिप्स a. में पेरेंट्स लंबा ही सोचते हैं. Exactly. तो वो एक it was a longest relationship, but we were good individually and we were not good for each other. It didn't work out. That's that. Was it a difficult breakup? It was a difficult breakup. If somebody is wanting to change you, to be in love with you, is not love. पर वो तब मुझे नहीं एहसास था because I was in love and I was willing to change for the person I love. Yeah. So I wish I hadn't changed all that much and been myself. I would have been a Different person. different person. जनरली कितना समय लगा मूव ऑन करने के लिए, एंड व्हाट वर द रेड फ्लैग्स दैट यू वर रिकॉग्नाइजिंग एंड सेइंग कि ये 3 चीजें अब मैं डेफिनेटली किसी पार्टनर में देख के नहीं करूंगी? मैंने काफ़ी टाइम लिया एक्चुअली. टुक मी ओवर अ year and a half. I literally moved into my best friend's house, Nazneen's. Yeah, because I was so low and so down. And wo, she would pep me up every day morning. I would wake up low, okay, what am I doing with my life? I loved him, and then she'd be like, no, it's okay. तो 1-1.5 साल लगा. I think most importantly, free red flags. Do not be with somebody who's trying to change
who you are. So आप अपने आप को प्यार के लिए बिल्कुल ना बदलें. एक दूसरे के फोन्स टाइम टू टाइम चेक करते रहे क्योंकि वो जरूरी होता है. हाँ क्या? या अगर वो छुपा रहा है, वो फोन उल्टा रख रहा है, कुछ तो गड़बड़ है बॉस. फीमेल इंस्टिंक्ट. है ना? And third, taking you away from your family and friends, you know, काफ़ी लोग not intentionally पर वो चाहते हैं कि पूरा समय आप उनके साथ ही रहो. You have to find a balance and always prioritize correctly. Yes, जब हम प्यार में होते हैं हम उसी को सबसे ज़्यादा importance देते हैं, लेकिन family should always also be on the same level. So try to balance that. आप ऐसा कभी सोचते हो कि द वे यू वेंट लुकिंग फॉर लाइफ पार्टनर कि कहीं ना कहीं यू लुक्ड फॉर क्वालिटीज दैट योर फादर हैड? He was an amazing man, but of course he had his negatives too. He used to drink a lot of alcohol. So मुझे एक चीज़ पता थी, जिससे मैं शादी करूँगी he should not touch alcohol and my husband doesn't. So वो हमेशा था कि ड्रिंक नहीं क्या चाहिए था ये पता था आपको? हाँ. बाकी आई थिंक रोहित में हर वो जो मुझे अपने डैड में बहुत पसंद आता था, जो ऑनेस्टी, जो पोलाइटनेस, जो जैसे वो थे, वो सब है मेरे हस्बैंड में. How was the Mr. Reddy falling in love scene like? It was cute. He was cute. तो very good family background. My father-in-law was an ex-army officer, so the way he treated me was absolutely different. आप जब गाड़ी में बैठ रहे हो, दरवाज़ा खोलना, politeness, punctuality, and very very like, मुझे तो अभी याद भी नहीं होगा, like गाली गलौज तो बिल्कुल ही ना. इनफैक्ट हम अभी भी 10 साल हो गए शादी को, हम झगड़ते हैं, यू नो, गलती से मेरे मुंह से कुछ गलत या यू नो अब्यूजिव वर्ड निकल जाता है. He's like, dude, we lose respect for each other, so do not use any bad word. So that way he's just an amazing guy, and he's taught me a lot. So yeah, he's a great guy. We met at a bar. And उसके बाद में Facebook, तब तक मैं Facebook पे आ गई थी. He pursued me on Facebook, and then we went on couple of dates, and then we started dating. So cool. Yeah. And generally शादी में ritual management कैसे हो रहा था? So अगर आप मेरे पेरेंट्स से, मतलब मेरे मॉम से मिलोगे, टोटल चिलर. आप मेरी मदर इन लॉ से मिलोगे, टोटल चिलर. हमारे शादी पे बस यही हो रहा था, नो वट एवर यू डिसाइड, जैसा भी, लाइक द पंडित जो हमारे फेरेस कर रहा था, ही वॉज लाफिंग कि किस वे में करना है, यू नो, लाइक जस्ट गिव मी डायरेक्शन ब्रो. सो वी लाइक दिस इज गोवा. आप बस लाइक 20 मिनट में हमारे फेरेस भी खत्म हो गए. इट वॉज वेरी चिल्ड आउट. We did some the South Indian rituals. We did some Sindhi things that my mom said, and we had a beautiful wedding with like our close people. Congratulations on the wedding. Congratulations on Arav. Oh, thank you. Yes, he's a post-pandemic baby. Yeah. The second wave baby. Yeah. Tough. कितनी कठिन होती है प्रेगनेंसी? It's a tough phase, as in अब body में changes आना, you know. Mentally, you know, you feel little different. At the same time, you feel empowered. Oh my God, there's a baby growing inside me. लेकिन COVID baby, like COVID pregnancy was definitely very freaking, क्योंकि इतने डर, घर से बाहर नहीं जा सकते, कोई घर के अंदर नहीं आ सकता. And you know, जो आ रहा है अंदर सामान, वो सब 25 चीज से गुजरे के आएगा. I swear, so इतना like वो phase ऐसा था कि आप कुछ कर नहीं सकते freely. तो that way it was very torturous, but eventually beautifully हो गया. And you won't believe, मेरे डिलीवरी के 1 हफ्ते 10 दिन पहले मुझे डॉक्टर ने बोला कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा, and if you're COVID positive then I won't deliver the baby, some other doctor will. So I was like freaking वो बड़ी out. इम्पोर्टेंट प्राणी हो जाते हैं ना आपकी जिंदगी में, जो आपके कॉमन लिएज होते हैं. बट किसी प्रकार का पोस्टमार्टम या किसी प्रकार का यू नो थिंग्स दैट यू मिस? I think every mother goes through postpartum depression at least 1 साल तक, until you know you find yourself back, you know, you find your life back, your body, everything. तो पहला जो 1 साल है वो सब मदर्स के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, कुछ डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन सिर्फ एक मदरली इंस्टिंक्ट होता है, लाइक कि आप बच्चे को टच भी ना करो पर आपको पता चल जाता है कि मेरे, यू नो, लाइक माई देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द चाइल्ड. सो इट्स अमेजिंग, इट्स अ ग्रेट फीलिंग. And every woman goes through it, and at that time it's very important कि आपके husband, आपके family आपके साथ खड़े रहे, आपको support करे. That is very very important. That pulls you through this phase smoothly.
क्या आपको नहीं लगता क्रिटिसिज्म जो औरतें फेस करती हैं फॉर देयर फिजिकल अपीयरेंसेस आफ्टर गिविंग बर्थ? एक कान से सुनो, एक कान से निकालो, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए. You've done something so big, life changing. Obviously, your body is going to change, but the beauty is that you can always get back to where you were. Yeah. Of course, look at me. मेहनत करके you can get back, and in fact, you can look hot. Look at Malaika, dude. You can look hotter. You can look better. So yeah, weight is just a number, and एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो. And nothing changes pleasure wise and everything else that people keep talking about. कि, oh my god, it won't be the same. Little bit it does change, but then also you can find it back in a great marriage. Your husband will always be there to find it back for you. बट वही बात है ना कि जो हम अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो यही होता है कि एज अ मैन कॉन्स्टेंटली ऑफन आस्क्स फॉर व्हाट ही वांट्स और ही लाइक्स, women don't do so much and we just want to change that, saying कि यार जिसको जो pleasuresome लगे वो उसके बारे में पूछ के नहीं. But I think उसमें कुछ गलत नहीं है, and हाँ. I think in a relationship or in a marriage, if you want to be happy, you rather ask the person you love for what you want rather than ये सोचना कि अरे वो कब समझेगा. That way you're just wasting time, and sex is very important in a good relationship. So I think if you love the person, you should be out there asking what you want, and he'll make sure that in his movie, it ends to your pleasure. That's so true. यार इतनी ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस है, तो क्या सरप्राइजिंग चीजें आपने अपने बारे में सीखी हैं पोस्ट बिकमिंग अ मदर? एक जो पावर ऑफ अ मदर, you feel like a super woman. You actually do. कैसे? Like the way you want to protect your child is of no comparison. It's crazy. मुझे ऐसे पता नहीं था कि मैं इतनी strong हूँ, and like जब आरफ को बुखार होता है इतनी emotional हो जाती हूँ, पर मुझे पता है कि how I have to fix him अगर बच्चे की तबीयत खराब हो. So I always thought that मैं हमेशा डर जाऊँगी and मैं situation को handle नहीं कर पाऊँगी, but motherhood teaches you how you have to handle the situation for your child. So cool. Mom's guilt होता है क्या कभी काम को लेके? हमेशा. If you have any passion, like I love acting, मैंने बहुत सोच समझ के I'm back to acting. I'm doing Suman Indori. मुझे लगा था मैं कभी नहीं करूँगी because I want to be there for Aruf, but you have to do things you love for yourself and try to balance it, क्योंकि mom guilt is never gonna go. And then you don't want to look back and say कि यार अभी तो वो स्कूल जा रहा है, उसकी लाइफ है, काश मैंने कुछ अपना जो what I love to do I would have done. So that's why if you feel you're ready to get back to work, do it like I did. कोई भी पेट्रियार्कल कंडीशनिंग जो आप उससे दूर रखती हो, आपने देखा कि कोई आप उनको कुछ सिखा रहा हो और आपने बोला नहीं ये वाली सीख नहीं देनी इनको? नहीं, उसको हर सीख मिलनी चाहिए, उसको एहसास होना चाहिए क्या सही है क्या गलत, एंड वो काम एक पेरेंट का होता है टू शो हिम द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. चॉइस इज हिज. मैं किसी को आज रोकूंगी कल नहीं रोक पाऊंगी. इट्स अबाउट हिम मेकिंग द राइट चॉइसेस व्हिच एज पेरेंट्स मी एंड रोहित विल try our best to teach him. और कोई जेंडर रोल्स जो आपको दिखे थे कि यार ये इनको नहीं कंफर्म करवाने वाले हम लोग, क्योंकि मर्द ये करते हैं औरतें ये करती हैं, मर्द हो नहीं सकते? बिल्कुल नहीं. he loves dancing, he does hula hoop. in fact recently attended a very cute art class जहाँ उन्होंने गणेश जी बनाया था. 8 लड़कियां थी, एक वो क्यूटली पोनी टेल मान के वो कर रहा था. so we really appreciate, we want him to take little bit of everything and make his own choices. Basically give him the best life of whatever we are today. भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है, so we want to give our best to our little one and to let him do and choose what he wants to in life. As a 21st century औरत, क्या learnings रही हैं आपकी जो आप छोड़ती हो कि ये चीजें जो मेरे को सिखाई गई थी ये मैंने डिलीट? यार मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ हमेशा बोला गया था that women should get married early and not work. तो वो एक मैंने fully delete किया. मैं ना बिलीव करती हूँ ना मैं किसी को ये एडवाइस दूंगी. Do what you love, pursue what you want to, get married when you want to. The fact that socially also people tell you कि आप 30 के हो गए हो, 32 के हो गए हो, शादी कब कर रहे हो? बॉस, शादी है, it's life changing. You can't just marry anybody. You have to be ready. 100%. Yeah, so I would definitely want to unlearn what the society has taught me of getting married at a certain age, of getting pregnant. I got pregnant also very late in life, 41. I was all right. It was perfect. It was very smooth. And also until I got pregnant, everybody was, "Are your age? Are you getting older?" No, when the right time comes, when you are ready, you become a mother. Not because the society wants you to become a mother, यार सोसाइटी की ना सुने, गायनाक की सुने. अपने दिल की सुने. You have to be ready. 100%. It changes your life fully. Yeah. कैसा लगा आपको हमसे बात करके? Very nice, very sweet. You're very warm and बहुत मजा आया. Thank you so much Thank for being you. on the show. You're a Thank hugger. you so much. Yeah.
ओके जी, दिस इज It depends on who is hugging. ओह So, वाह, yeah, देखो ये a hugger for you. भाई चलो, thank you. सब्सक्राइब bye-bye. कर लो। अभी सब्सक्राइब करो.